Students, today we will explain poem number 3 entitled as Bengal Sellers, composed by Sarojini Naidu. In this poem, the poetess tells us different colored bangles for different stages of a woman's life. इस कविता में जो कवित्री हैं सरोजिनी नायडू, उन्होंने अलग अलग प्रकार के रंगों की चूड़ियों को बताया है कि ये चूड़ियाँ अलग अलग प्रकार के महिलाओं के लिए होती हैं, उनके आयु वर्ग के हिसाब से. दिस पोएम इज ए सॉन्ग sung by bangle sellers who sell their bangles in village fair that is organized around temple. और ये जो कविता है ये एक गीत के रूप में है जिसे गाया जाता है चूड़ी बेचने वालों के द्वारा एक मेले में, और मेला एक मंदिर के पास लगा हुआ है. In the first stanza, the poetess says that bangle sellers are we who bear our shining loads to the temple fair, who will buy these delicate, bright rainbow tinted circles of light, lustrous tokens of radiant lives for happy daughters and happy wives. In the first stanza, the poetess says that bangle sellers are those persons who carry the shining bangles to the temple fair. Shining loads means shining bangles. बैंगल सेलर्स वे लोग होते हैं जो चमकदार चूड़ियों को लाते हैं मेले में, जो मेला मंदिर के पास लगा हुआ है. Who will buy these delicate bright rainbow tinted circles of light? Rainbow tinted means rainbow colored, multicolored. Bangles are available in all 7 colors of rainbow. रेनबो के जो 7 कलर होते हैं उन 7 कलर में चूड़ियाँ उपलब्ध हैं. And while selling their bangles, they attract customers by saying that who will buy these delicate bright rainbow tinted circles of light. Circle means राउंड शेप ऑफ बैंगल्स. और चूड़ियाँ बेचते समय जो बैंगल सेलर्स होते हैं वो प्रश्न पूछते हैं जो आसपास के लोग होते हैं उनसे कि हमारे इस डेलिकेट ब्राइट और मल्टी कलर्ड चूड़ियों को कौन लेना चाहता है, कौन खरीदेगा. हु विल बाई. लस्टर्स टोकन्स ऑफ रेडियंट लाइव्स. लस्टर्स मीन्स चमकदार, ब्राइट. टोकन्स मीन्स सिंबल. रेडियंट मीन्स हैप्पी and bright as well. The poetess says that these bangles are symbol of happy and bright life of a woman for happy daughters and happy wives. Daughters are happy because they will be married soon, and wives are happy because they are contented in their marital life. तो इस तरह से फर्स्ट स्टैंजा में जो पोएटेस हैं वो बताती हैं कि जो रेनबो कलर की चूड़ियाँ होती हैं, 7 कलर की चूड़ियाँ, वो हैप्पी डॉटर्स और हैप्पी वाइब्स के लिए होती हैं. इस तरह से पहले स्टैंजा में कवित्री ने बताया है. इन द सेकेंड स्टैंजा द पोएटेस सेज दैट सम आर मीट फॉर ए मेडन्स रेस्ट, सिल्वर एंड ब्लू as the mountain mist. The poetess says that silver and blue colored bangles are for unmarried girls. Maidens means unmarried girls. Wrist means kalai.
जो सिल्वर और ब्लू कलर की बैंगल होती है वो अनमैरिड गर्ल्स के द्वारा यूज किया जाता है। एज द मिस्ट, मिस्ट मीन्स होता है कुहासा, कोहरे से कम घना होता है, उसे मिस्ट कहा जाता है। और उन चूड़ियों का कलर जो है उसको कवित्री जो मिस्ट होता है, मिस्ट का कलर होता है, उससे तुलना करती है। सिल्वर एंड ब्लू कलर्ड बैंगल्स आर जस्ट लाइक द कलर ऑफ द माउंटेन मिस्ट। Some are flushed like the birds that dream on the tranquil brow of a woodland stream. Flush means red. Some bangles are red in color, and they are just like the birds. They are just like the flowers that dream, that grows on the tranquil brow. Tranquil brow means calm surface of a woodland stream. Woodland stream means forest brook. जो जंगल की जलधारा के शांत सतह पर जो कलियां उगती हैं, जो छोटे छोटे फूल उगते हैं, उनके समान कुछ चूड़ियां हैं, उनका रंग लाल है। यानी कलियों का रंग जैसे लाल होता है उसी तरह से कुछ चूड़ियां ऐसी हैं जिनका रंग लाल है, और उनकी तुलना कवि जंगल के जलधारा के पास जो शांत सतह पर जो कलियां उगती हैं उनसे तुलना करता है। Some are aglow with the bloom that cleaves to the limpid glory of newborn leaves, and some bangles are glowing in color, and they are in green color. And the poetess says that green color is very closely associated to the vivid ब्यूटी और फ्रेशनेस ऑफ न्यू बॉर्न लीव्स। कवित्री कहती है कि कुछ चूड़ियाँ हरे कलर की हैं और जो उसकी तुलना कवित्री न्यू बॉर्न लीव्स मतलब नए ताज़े पत्ते से करती है, कि जैसे नए ताज़े पत्ते उसकी लिम्पिड ग्लोरी मतलब विविड फ्रेशनेस जो सुंदरता होती है, स्पष्ट सुंदरता होती है, उसी तरह से वो चूड़ियाँ हैं जो हरे कलर की हैं और ये अनमैरिड गर्ल्स के सुंदरता को बढ़ाती हैं। तो सेकंड स्टेंजा में पोएटेस बात करती है सिल्वर, ब्लू, रेड एंड ग्रीन कलर की चूड़ियों की, और इस कलर की चूड़ियाँ कवित्री कहती है कि ये अनमैरिड गर्ल्स के द्वारा पहनी जाती हैं। द पोएटेस सेज दैट सिल्वर, ब्लू, रेड एंड ग्रीन colored bangles are used by unmarried girls, and these colors express their tender longing of getting married one day। और इस तरह की जो चूड़ियाँ का कलर होता है ये दर्शाता है कि जो अनमैरिड गर्ल्स हैं उनकी शादी होने वाली है। इस तरह से अनमैरिड गर्ल्स इस तरह की चूड़ियाँ पहनती हैं।